अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी सर, ये नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से क्लास लेट हो रही है। There was a network problem. Okay, students, we are uh, today's our topic is percentages. Today's topic is percentages. Percentage denoted by this one slash and 10 on the upside, 10 on the downside. These are the zeros, small zeros, not dots. Some students write just like dot. तो डॉट नहीं है बेटा, यहाँ जीरोस है, तो ये हमने जीरोस लेने हैं, डॉट नहीं लिखना परसेंटेज के लिए। So percentage means per means 1 and cent means 100. Percentage means 100 out of 100. When we are saying 5%, it means 5 out of 100. So we write 5%. We write 5%. 5% means 5 out of 100. So percentage is just like a fraction. This is a fraction, but it is written in a different way. Meaning is same. Meaning is same, but the writing way is different. So 5% means 5 upon 100. That means 5 out of 100. Just like 3 upon 4 means 3 out of 4. We have to convert into the 4 parts of a thing, and then we take 3 of them. So that will be 3 upon 4. In the same way, 5% means if we divide the one thing into 100 parts and then we take 5 of them, so that is 5%. Omar Moss coming first time. So percentage means 5% means 5 up out of 100. In the same way, if a student is getting 88%, it means he is getting 88 out of 100. So these two students, Umar Mohsin and Kinza,
I think they are joining first time. Yes, sir. They are joining first time. Okay. So percentage, I told you. So percentage means this is a fraction out of 100. Percentage means out of 100. So for example, if a student is getting 90%, it means he's getting 90 out of 100. We can convert into percentage. How to convert? If a student is getting uh, uh, 450 out of 700, so what will be the percentage? How to convert into the percentage? The student is getting 450 out of 700. So 450 out of 700. So this is the fraction. The student is getting 450 out of 700. So what will be the percentage? So we will multiply it by 100%. To convert into the percentage, we will multiply it by 450 out of 700 multiplied by 100%. We will get the percentage. So this is the percentage. How to find the percentage? So how to convert into the percentage? 450 out of 700, that means 100%, 100% into 100%. So just calculate it and tell me the answer, or I am calculating by myself. That's 64.28. 64.28. Good. So the answer is 64.28%. That means out of 100, that if the total marks not 700, it may be 100. So he is getting 64.28 out of 100. So this is the percentage. This is the way how to convert one thing into a percentage. If the percentage is given, how many marks he got? For example, if a student is getting, this is told he is getting 89%. A student is getting 89%. So how much marks are there out of 1100? The total marks are 1100 and the student is getting 89%. So how many marks he should get so that it should be 89%? So 89% multiplied by his out of 1100. So multiplied by 1100. 89% means 89 upon 100. 89% means 89 upon 100. So 89% means 89 upon 100 into 1100. So how many marks is getting? Haris, Hasnain. Sir, 979. 979. Very good. 979 marks. Is getting 979 marks. So now came Hasnain Aslam. Okay. Then Haris Khan. Okay. The actual timing of class is 12:30 to 3:30. The timings of the class are 12:30 to 3:30. These are the actual timings, the scheduled timings. But today it was the network problem, therefore the class started late. It started late due to the network problem. तो yes LMS पर यही टाइम हमने दिया हुआ है, जो हमें टाइम बताया गया वो हमने उस पर डाला हुआ है 12:30 to 3:30. अच्छा, तो हमने ये आपको नहीं सर, LMS पे जी LMS पे क्या है कहिए. 11:30 आता है LMS पे, उसके शेड्यूल पे. नहीं वो 11:30 नहीं बेटा, वो हो सकता है वो कुछ गलत हो गया हो.
वो 12:30 टू वो है 3:30 हमारा जो टाइम है 12:30 टू। और हमने जो LMS अपना कोर्स फाइल जो है ना हमारी LMS पे जो हमारी कोर्स फाइल है उसमें जो हमने टाइम दिया हुआ, डेट और डे और टाइम भी दिया हुआ है उसमें हमने सब कुछ दिया हुआ है। आपका कोर्स आउटलाइन भी दी है, बुक्स वगैरह भी बताई हैं कौन कौन सी हैं, लेक्चर प्लान भी है और उसमें जो हमने टाइमिंग्स भी शो कर दिए हैं, उसमें हमने टाइमिंग भी शो कर दिए हैं कि टाइमिंग जो है वो आपके 12:30 टू 3:30 है और एवरी मंडे वो कोर्स फाइल जो है ना हमारी जो कोर्स आप जहाँ से आप ये एंटर होते हैं LMS पे इसमें, तो वहां पर आप देखेंगे तो उसमें जो है हमने टाइमिंग भी मैंने खुद शो की है, उसमें डे भी शो किया है, टाइमिंग भी शो की है, सब कुछ मैंने शो किया हुआ है उसमें, वो लिख दिया है ताकि बच्चे अगर भूल चूक हो जाए तो वहां से देख ले वो। तो बुक्स भी उसमें है, आपका लेक्चर प्लान भी है, उसमें सब कुछ मौजूद है, तो वहां से आप देख लिया करें। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कौन सी बुक क्या बुक, LMS पे जाए वहां से देख ले कौन कौन सी बुक्स है। अच्छा, तो ये मैंने आपको बता दिया कि 89% अगर कोई लेता है तो 1100 में से उसके कितने होंगे 979%। तो परसेंटेज तो वैसे भी आम लाइफ में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, और बिजनेस में तो खास तौर पे है ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका रोल बिजनेस में, तो क्योंकि वहां चीज परसेंटेज में काउंट होती है, उसमें हर चीज परसेंटेज में काउंट होते हैं। प्रॉफिट कितना लेना है भाई, उस पे अखराजात कितने हो रहे हैं, आपका टैक्स कितने, वो टैक्स हर चीज परसेंटेज में वो होती है, तो सब चीज उसमें होगी आपको, इसलिए परसेंटेज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वही एक्सरसाइज हम कंटिन्यू करेंगे परसेंटेज के लिए जो लास्ट टाइम हमने इनइक्वलिटीज में की थी, जो लास्ट टाइम हमने इनइक्वलिटीज में की थी। तो वही एक्सरसाइज हम इसको फॉलो कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 है, एक्सरसाइज 1.3 है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो इनइक्वलिटी का था, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो परसेंटेज का है। कैलकुलेट ए पार्ट 12%। जी बेटा कुछ कह रही हैं आप, जी सर। सर बोलिए। आपने लास्ट एक्सरसाइज जो 1.2 करवाई है हमें, हाँ सर उसके 23 तक तो हमें सॉल्व करने थे सर, उसके आगे जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो हमें खुद करनी है सॉल्व, हाँ वो कर ले, अच्छा है जो 23 to 26 है। जी। मतलब और हमने 1.3 भी तो की थी ना जो इनइक्वलिटी। आगे सवाल। हाँ 1.3 की भी तो सर अगर हमने आप की। उसमें से एक हमें कोई समझा दें तो हम वो कर लेंगे। कौन सा? यस सर, वो तो कंप्लीट कर लिए थे ना हमने 5 सवाल। तो कौन से क्या क्या यस कह सर। रही हैं, कौन से और क्वेश्चन? सर उसमें जो 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10, अगर आप उसको ओवरव्यू दे दें। 1.2 का? सर 1.2 का हाँ, जो क्वेश्चन नंबर 23 तक हमने कर लिए थे सारे जी जी सवाल। सही है, जी। ठीक है, फिर? उसके आगे जो वर्ड प्रॉब्लम है जी तो सही सर है, ये करनी है। हाँ कर ले, अच्छा है, वरना कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वो, उसमें तो और क्वेश्चन नंबर 10 जो इसमें डॉलर को उसमें कन्वर्ट करना है, यूरो में, येन में, इस किस्म का, वो फिर आपको उसकी वो जो है उसका रेट उससे मल्टीप्लाई करते चले जाए, वो रेट उसमें आ जाएंगे, वो रेट वगैरह के हैं क्वेश्चन, तो खास इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, उसमें रेट में कन्वर्ट करना है डॉलर को उसमें। जैसे क्वेश्चन नंबर, अब मैं कौन सा क्वेश्चन देख रहा था, क्वेश्चन नंबर 24, बैग इज प्राइस्ड एट 400 कैनेडियन डॉलर, कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द बैग इन यूरो एंड बी पार्ट यन। तो डॉलर को, कैनेडियन डॉलर को आपने यूरो में और येन में कन्वर्ट करना है, तो उसके आपको रेट लिस्ट पता होनी चाहिए, जैसे यहाँ दी हुई है 1 यूरो इज इक्वल टू 0.